Hello students, good morning. Now welcome in our English online class. Student, we have completed our last chapter from English reader, that is moment, and the title of the chapter is The Beggar. In this chapter, we came to know about one of the person who was there in habit of drinking wine. Because of that reason, he was expelled from the Russian corps, which was a group of musicians. And because of that reason, that Luskov started to begging, and after that he reached in front of one of the advocate in form of Sergei. He gave him some work to do, and in this way he could be able to change his lifestyle. Now, today we shall discuss about the question which have been given in the textbook. Let's start. Here is the first question. Has Luskov become a beggar by circumstances or by choice? लुस्कोप जो है वो जो भिखारी बना वो सर्कमस्टांसिस या बाय चॉइस यानी बाय चांस बना या बाय चॉइस बना, या ये कहिए कि लुस्कोप भिखारी हालात के द्वारा बना या खुद बना. So we can say that Luskov became a beggar by choice, because if he had left the bad habit of drinking wine, then he would not have been expelled from the Russian group of musicians, and in this way he would not have to beg. अगर लुस्कोव ये कह सकते हैं कि लुस्कोव जो है वो बाय चॉइस यानी खुद ही अपने पाँव पर उसने कुल्हाड़ी लगाई, क्योंकि वो खुद ही भिखारी बना. अगर वो क्या नाम है रशियन म्यूजिशियन जो ग्रुप था म्यूजिक से रिलेटेड लोगों का, अगर उस ग्रुप में रहते हुए वो शराब की आदत छोड़ देता तो उस ग्रुप के सदस्य उसे एक्सपेल ना करते. लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी पीने की, और इस तरह से उसको ग्रुप से निकाला गया, एक्सपेल किया गया. और एक्सपेल होने के बाद he didn't have any work to do. So due to that reason he started to beg in front of other people. So we can say that he became beggar by choice. तो हम कह सकते हैं कि वो खुद ही एक भिखारी बना है, उसके पीछे कोई और नहीं, वो स्वयं जिम्मेवार था. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आई रीड इट फॉर यू. व्हाट रीजन डज ही गिव टू सर्जई फॉर हिज टेलिंग लाई? सर्जई को वो क्या क्या नाम है रीजन देता है, क्या कारण बताता है झूठ बोलने का? So we can say that Luskov gave the reason to Sergei that if he did not tell lie in front of other people, then he would not get anything for eating, and in this way he would die by hunger, by thirst, because he didn't have any job. And the person who doesn't have any job in his hand, and that person doesn't tell lie in front of other people, then he may die because of hunger. कोई व्यक्ति जिसके हाथ में काम नहीं है
और वो व्यक्ति अगर झूठ ना बोले तो वो ये क्या नाम है, लुस्कोप ये सोचता है कि वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति उसे कुछ नहीं देने वाला था सच्चाई बोलने पर, ऐसा लुस्कोप सोचता है। So he says that because of lack of job, he had to tell lies so that he could get something from people. So that was the reason because of which he had to tell lie in front of other. ये वो कारण बताता है लोगों को कि यदि मैंने झूठ न बोली तो मैं भूखा मर जाऊंगा, क्योंकि झूठ के कारण ही सोचता है और कहता है कि मेरे को कुछ मिलता है। नेक्स्ट, is Luskov a willing worker? Why then does he agree to chop wood for surgery? क्या Luskov willing worker है? We can say that Luskov is not a willing worker. He became a worker only because of hunger and only because of keeping his word. As in front of Sergei, when Sergei told him that he should do work instead of doing begging, instead of begging before others, at that time he said that where the work was, where the job was. Then, by saying these words, advocate told him that he himself would give him work if he would be ready to do that work. So in this way, when Sergei gave him work to chop wood, then he couldn't tell that he would not do any work, because before some time he asked some work. So in this way, if he had told in front of other people to give him work, then how he could refuse that the work should not be given to him? अब कह सकते हैं कि लुस्कोप जो है वो विलिंग वर्कर नहीं है, वो हालात के सामने वर्कर बना है। क्योंकि अगर वो वर्कर नहीं बनता तो सर्जई के सामने जो उसने स्वीकार किया था कि वो, जैसे उसने सर्जई ने कहा कि भीख ना मांगे, वो काम करे, तो उसने कहा था कि काम कहाँ है, नौकरी कहाँ है। तब एडवोकेट सर्जरी ने उसको कहा कि मैं नौकरी दूंगा, आप हर महीने कि पहले दिन आप हमारे आंगन में आकर लकड़ियां काट सकते हैं। अब इस बात के सामने वो अभी कुछ समय पहले उसने वायदा किया था, उसने कहा था कि काम कहाँ है, लेकिन अब काम दिया जा रहा था तो वो काम लेने से मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसे मजबूरीवश ये नौकरी करनी पड़ी। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाई देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्जरी? तो इसका भी आंसर हम दे चुके हैं। ही एग्रीज टू चॉप वुड फॉर सर्जरी बिकॉज ही कांट डिनाई टू चॉप वुड, because before some time he told Sergei to give him work. So in this way, in that situation, how he could refuse to do any work? क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही सर्जई से काम मांगा था और कहा था कि काम कहाँ है, काम करने वाले बहुत हैं लेकिन काम नहीं मिलता, तो सर्जई ने उसे काम दिया। अब काम देने के बाद वो कैसे मना कर सकता था काम लेने से, काम करने से? सो ड्यू टू दैट रीजन ही हैड टू एक्सेप्ट दैट ऑफर ऑफ सर्जई, इसलिए उसे सर्जई का ऑफर स्वीकार करना पड़ा।
नेक्स्ट, Sergey says, I am happy my work has taken effect. Why does he say so? Is he right in saying so? तो सर्जय कहता है कि मैं खुश हूँ कि मेरे वो क्या नाम है, वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ वर्क नहीं है, वर्ड, माय वर्ड्स। कहता है कि मैं खुश हूँ कि मेरे शब्द जो है, मेरे शब्दों ने किसी के ऊपर अच्छा असर डाला है। वाई डज ही से वाई डज ही से सो, वो ऐसा क्यों कहता है। सर्जई ऑफर अ जॉब, सर्जई गिव्स अ जॉब टू लुस्कोफ फॉर चॉपिंग वुड फॉर हिम। लुस्कोफ को वो लकड़ियाँ काटने का काम देता है, सो दैट लुस्कोफ कुड कम एवरी डे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। यानी लुस्कोफ महीने के पहले दिन उसके घर पर आकर लकड़ियाँ काट सके, ये काम उसको दिया जाता है। एंड इन दिस वे लुस्कोफ आल्सो स्टार्टेड टू कट वुड on the first day of every month for earning half ruble। ये यहाँ पर रूबल है, RUBLE, आधा रूबल कमाने के लिए लुस्कोप जो है हर महीने के पहले दिन आ जाता था। एंड सर्जई said that he was happy because Luskov has acted upon his advice। अब सर्जई ने कहा कि वो खुश था क्योंकि लुस्कोप ने उसकी सलाह पर काम करना शुरू कर दिया था। बट वी कैन से ही इज़ नॉट राइट इन सेइंग सो बिकॉज लुस्कोप डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन चॉपिंग वुड, ही हैड ओनली इंटरेस्ट इन earning money so that he could purchase wine from that earned money। लेकिन हम कह सकते हैं कि लुस्कोप का जो है लकड़ियाँ काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका ध्यान, उसका इंटरेस्ट केवल रुपए कमाने में है। वो कोई इंटरेस्ट के बेस पर काम नहीं कर रहा था, वो पैसे के लिए कर रहा था ताकि पैसा कमाकर वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति, यानी महंगी वाली शराब खरीद कर उस इच्छा को वो पूर्ण कर सके, इसलिए वो ऐसा कर रहा था, पैसे कमा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि वो सर्जई जो कहता है वो अपने वर्डिंग में सही नहीं है। अगर वो सर्जई के कहे अनुसार वो काम करता फिर तो हम मान लेते कि वो सही है, लेकिन वो लकड़ियाँ एक व्यवसाय के रूप में नहीं, एक इंटरेस्ट के रूप में रुचि लेकर नहीं काट रहा था, वो केवल पैसे कमाने के लिए। और दूसरी बात, उसने लकड़ियाँ खुद काटी नहीं, इट वाज सर्जई कुक इन फॉर्म ऑफ ओल्गा हु चॉप्ड वुड फॉर हिम। ये तो सर्जई की कुक थी, रसोईया थी ओल्गा, वो उसके लिए लकड़ियाँ काटती थी। So we can say that he is not right while saying that he is happy that his word have taken effect। हम कह सकते हैं कि वो सही नहीं है ये कहने में सर्जई कि वो खुश है कि उसके शब्दों ने उसके ऊपर असर छोड़ा। अगर असर छोड़ता तो वो खुद ही लकड़ियाँ काटता, लेकिन उसने कोई लकड़ी नहीं काटी, ओल्गा ने ही और सब लकड़ियाँ काटी। नेक्स्ट है, लुस्कोप इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ। अब लुस्कोप जो है वो 35 रूबल हर महीने कमाता है। हाउ इज ही ओब्लाइज टू सर्जई फॉर दिस।
वो इसके लिए सर्जई का आभार कैसे व्यक्त करता है। नाउ लुस्कोप हैज स्टार्टेड टू वर्क एज अ नोटरी। एज यू नो, द जॉब ऑफ अ नोटरी इज टू attest the wording of someone by writing those wording on the affidavit। अब लुस्कोप ने जो है नोटरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, और नोटरी का काम क्या होता है, एफिडेविट पर सामने वाले व्यक्ति के विचार या कह लीजिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उनको उसके ऊपर एफिडेविट के ऊपर रिकॉर्ड करके उसको साइन करता है, और वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो वो होता है नोटरी। तो लुस्कोप ने अब नोटरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, एंड ही वाज अर्निंग 35 रूबल्स पर मंथ एट दैट टाइम, और वो उस समय 35 रूबल कमा रहा था। एंड he was fully obliged to Sergei for giving him a job of cutting wood for him, and that chopping of wood changed his lifestyle completely. And in this way, he left the idea of begging and started to live a noble life in form of a notary। तो इस तरह से उसने बैगिंग का काम छोड़ा और नोटरी का काम करना उसने शुरू किया। एंड फॉर दिस ही थॉट हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू सर्जई टू ब्रिंग दैट चेंज इन हिमसेल्फ। और वो सर्जई को उसकी लाइफ में चेंज करने वाला समझता था, उसकी लाइफ में बदलाव लाने वाला सर्जई को ही मानता था। सो ड्यू टू दैट रीज़न ही इज completely obliged to Sergei for the change which came into his life। इस तरह से वो सर्जई को ही आभारी मानता है उस बदलाव को लाने में। ड्यूरिंग देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत के दौरान लुस्कोप रिवेल मीन भेद खोलना। लुस्कोप जो है ये भेद खोलता है दैट सर्जई लुक, ये लुक की बजाय कुक है, कुक COOK, यानी बातचीत के दौरान लुस्कोप सर्जई के कुक, लुस्कोप भेद खोलता है कि सर्जई की जो कुक थी, रसोईया ओल्गा थी, वो जिम्मेवार थी उसके अंदर पॉजिटिव चेंज लाने में, यानी सकारात्मक बदलाव लाने में ओल्गा जिम्मेवार थी। किसके जीवन में बदलाव लाने के लिए? लुस्कोप के जीवन में। हाउ हैज़ ओल्गा सेव्ड लुस्कोप, किस तरह से ओल्गा ने लुस्कोप को बचाया। सो वी नो दैट लुस्कोप हैड हिज बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, and because of that bad habit of drinking wine he was expelled from the Russian musician group, and at that time he didn't have any job also, so due to that reason he started to work as a beggar। उसने बैगर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, भिखारी के रूप में, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था और रशियन म्यूजिशियन ग्रुप से उसको निकाल दिया गया था। इट वॉज सर्जई हु केम इन टू हिज लाइफ एंड हु गेव हिम सम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड। ये सर्जई था जो उसको कुछ काम दिया लुस्कोप को, और लकड़ियाँ काटने का। व्हेन सर्जई टोल्ड हिज कुक ओल्गा टू carry him in the open yard for chopping wood, at that time
When Olga saw him and found that he was not able to cut a single piece of wood at that time, she was so kind, and because of that kindness, she herself started to chop the wood so that he could earn something and he could eat something by earning that money. तो क्या होता है, जैसे ही सर्जेई के संपर्क में लुस्कोप आया, लुस्कोप को काम मिला सर्जेई के द्वारा लकड़ियाँ काटने का, लेकिन और सर्जेई ने जैसे ओल्गा को कहा कि वो उसको छप्पर में के नीचे आंगन में ले जाए और उसको लकड़ियाँ उससे कटवाए, तो ओल्गा जो है उसकी हालत को देखकर उसको तरस आया, उसको दया आई और ओल्गा ने लुस्कोप के लिए लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया. So, by watching that type of good behavior of kindness which was shown by Olga in front of that old beggar in form of Luskov, then a certain type of change took place in his heart. He started to think that other people were being forced by him to do any work, then why he should not leave his bad habit of drinking. So because of that reason, Olga is responsible for the positive change which came into his life. इस तरह से हम कह सकते हैं ओल्गा पूरी तरह से जिम्मेवार है वो बदलाव लाने के लिए जो लुस्कोव की लाइफ में आए, और इस तरह से उसने लुस्कोव के जीवन को बचा लिया. Because of Olga, he changed his habit. He left his habit of drinking wine and he started to work as a notary. And he, after some days, he could be able to live a proper life. और कुछ दिन बाद जो है वो सही जीवन जीना उसने शुरू कर दिया. तो हम कह सकते हैं इन दिस वे वी कैन से दैट ओल्गा इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल टू सेव द लाइफ ऑफ लुस्कोव. ओल्गा जो है पूरी तरह से जिम्मेवार है लुस्कोव के लाइफ में बदलाव लाने के लिए, उसके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए. एंड ओल्गा सेव्ड हिज लाइफ, और ओल्गा ने उसके जीवन को बचा लिया. सो विथ दिस क्वेश्चन दिस चैप्टर इज ओवर, एंड विथ दिस चैप्टर आवर all lesson related to this book also have been discussed completely. Now you will write down and learn these question answer. Okay, thank you.